Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. So, today we start our next topic or lesson number 5 of science. The chapter name is heat. Today the day is Tuesday and date is 18 May 2021. So, today beta we read about the types of thermometer. In yesterday topic we have read about the heat, the temperature, measurement temperature by using thermometer and how thermometer work. Now today the topic is the types of thermometer. So there are many types of thermometer depending upon the purpose, scale and substance used inside the थर्मामीटर कि थर्मामीटर की कई टाइप्स होती है वो डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर ले उस पर कौन सा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल है या सेल्सियस स्केल है उसमें कौन सा सब्सटेंस फिल है However, the most commonly used the thermometers are the clinical thermometer and the laboratory thermometer. Okay, in previous video I told you that clinical thermometer is used to measure the body temperature and laboratory thermometer used to measure the temperature of different liquids that are used in the labs in the investigation purpose, etc. Okay, so first we read about the clinical thermometer. So clinical thermometer, it is a thermometer which is used at home, clinics and hospitals to measure the body temperature. Okay, clear? And clinical thermometer are measured by two scales, Celsius scale and the Fahrenheit scale. Okay, सेल्सियस आपको बताया था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक की मेजरमेंट उस स्केल के ऊपर होती है और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की जो मार्किंग होती है दैट इज फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल माना जाता है तो मीन्स जो डॉक्टर आपको बताता है कि आपको 100 डिग्री टेम्परेचर है या 101 है या 103 है दैट इज़ इन फ़ारेनहाइट वो आपको फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर बताया जाता है ओके सो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इससे ऊपर जाता है दैट मीन्स यू हैव फीवर A body temperature higher than this constitute fevers which may be low or high depending on the temperature कम फीवर भी हो सकता है हाई भी हो सकता है 38 डिग्री सेल्सियस हुआ या 99 डिग्री सेल्सियस हो गया 100 उसको लो माना जाता है अगर 40 तक जा रहा है या 101 102 तक जा रहा है तो उसको हाई फीवर माना जाता है तो यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट दे हैव 101 फीवर that means it is in Fahrenheit that is in Fahrenheit so do you know what they meant by that they were actually referring to temperature in Fahrenheit scale तो वो हमें टेम्परेचर जो बता रहे हैं वो Fahrenheit scale में बता रहे हैं ठीक है ओके in the Fahrenheit scale is from 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit जो आपको यहाँ पे बताया गया तो you have to learn this value in Celsius scale the marking on thermometer is 35 to 40 degree Celsius and Fahrenheit scale the marking is 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit okay now the next one is laboratory thermometer can we use a clinical thermometer to measure the temperature of hot or boiling water क्या हम क्लिनिकल थर्मामीटर जिसपे 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस की मार्किंग होती है या फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट की मार्किंग होती है क्या उससे हम किसी हॉट बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं नो वाई एज यू ऑल नो द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस में अगर हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर का तो दैट इज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली और बॉइलिंग वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज मच हायर टेम्परेचर सो clinical thermometer can't be used to measure this high temperature okay clinical thermometer can be not be used to measure substances with a temperature more than 42 डिग्री सेल्सियस और 43 डिग्री सेल्सियस तो अगर 42 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है तो क्लिनिकल थर्मामीटर उसको मेज़र नहीं कर सकता और अगर 35 डिग्री सेल्सियस से लेस है तो भी वो उसको मेज़र नहीं कर पाएगा सो वी नीड अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर सच सब्सटेंसेस और फॉर एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी फॉर सच पर्पज लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज तो उस पर्पज़ के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं और उस पर जो स्केल होता है दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक की मार्किंग होती है मीन्स वो जीरो से माइनस में चला जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी 110 डिग्री सेल्सियस तक है वो टेम्परेचर को नोट डाउन कर सकते तो माइनस में भी नोट डाउन कर लेगा जीरो से कम जाके ठीक है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है और हाई टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है उस तक वो उसको टेम्परेचर को नोट डाउन कर सकता है इट कैन बी यूज टू मेजर हायर टेम्परेचर देन द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर इज लॉन्गर देन द क्लिनिकल थर्मामीटर इसका साइज भी क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर से काफ़ी
बड़ा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिकॉशन हैंडलिंग थर्मामीटर, कि थर्मामीटर को जब यूज़ करें तो हमें क्या सावधानियां बरतनी, क्या प्रिकॉशंस हमें उसमें लेने हैं। तो देखिए, अ थर्मामीटर शुड बी केयरफुली हैंडल्ड, सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर आर। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। व्हाट दैट वन, फर्स्ट वन देखिए, the first one is all care should be taken so that thermometer is not broken, कि thermometer टूट ना जाए, because mercury is a very dangerous chemical and can harm in it if it enters the body, कि जो अगर ये ब्रोकन होता है इसमें जो मर्करी केमिकल फिल है वो बहुत ही डेंजरस है, वो पॉइजनस है। अगर वो हमारी बॉडी में बाई चांस एंटर कर जाए तो डेथ, तो वो हमारी डेथ भी कोज कर सकता है, ठीक है। सो इट इज डेंजरस मर्करीज, सो वी हैव टू कहते हैं कि बहुत ही सावधानी केयरफुली क्या इसको हैंडल करना होता है। सेकेंड वन, टू अवॉइड इन्फेक्शन थर्मामीटर शुड बी वॉश विद एल्कोहल वाटर बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज। तो आपने देखा ही होगा, आपको बताया था कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने थर्मामीटर को जो होता है लिक्विड में रखा होता है, दैट इज एल्कोहल, जो उसको जम फ्री बनाता है, क्योंकि वही थर्मामीटर के कई पर्सन्स के माउथ में रखा जाता है तो जम्स उनके उसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो उस जम्स को किल करने के उसको अल्कोहल में डिप करके रखा जाता है। तो एवरी यूज़ के बाद, ठीक है, और यूज़ से पहले भी क्या उसको हमें अल्कोहल से क्लीन करके रखना चाहिए, जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। थर्ड वन, इंश्योर दैट द मर्करी लेवल इज एट मिनिमम बिफोर प्लेसिंग इट इन द माउथ और आर्म पिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ये भी आपको बताया था कि जब भी हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर तो पहले उसको क्या जर्क करते हैं, झटका देना, जर्क, ठीक है, JER के जर्क दिया जाता है, किस लिए, ताकि अगर मर्करी लेवल अल्कोहल अगर हीट अप हो चुका है भाई बाहर के टेम्परेचर के कारण, तो क्या है कि थोड़ा मर्करी लेवल ऊपर की ओर चला गया है, तो उसको पहले जीरो पे होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि उसको थोड़ा जर्क देना, झटका देना है, ताकि वो नीचे रहे, मिनिमम लेवल पे रहे, माउथ में या आर्म पिट अंडर द आर्म्स रखने से पहले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वाइल रीडिंग अ स्केल इंश्योर दैट इट इज़ एट आई लेवल, कि जब भी आपने रीडिंग करें तो आई लेवल से बिल्कुल 90 डिग्री पर रखना है आपने उसे। ये नहीं कि आप उसे ऊपर नीचे रख के रीडिंग करेंगे तो आप प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाएंगे, मर्करी का लेवल प्रॉपर हम उसको रीड आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, a thermometer should be properly stored in its case and it should not be stored in very hot places, ठीक है। तो थर्मामीटर को हमें प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, केयरफुली रखना चाहिए। उस साथ से उसको हॉट प्लेस जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे नहीं रखना, अदरवाइज मर्करी का लेवल अपने आप उस पर क्या होगा, एक्सपेंड होता जाएगा। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस डे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहते हैं आप इसी तरह से कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन का पता कीजिए, अर्थ के टेम्परेचर, अर्थ के जो कोर का टेम्परेचर, सन के कोर का जो टेम्परेचर उसके बारे में नोट कीजिए, कितने हाई डिग्री सेल्सियस तक है, उसके बारे में आप नेट से पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, की हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, हाउ दिस बोथ टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड द टेम्परेचर। ओके, तो हीट क्या है देखिए, there is a bucket of water at temperature of 30 degrees Celsius and a mug of water at the same temperature that is at 30 डिग्री सेल्सियस। कि आपके पास एक बकेट है, उसमें वाटर फिल है, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इस तरह आपके पास एक मग है, उसमें भी वाटर, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कैन वी से दैट बोथ कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या दोनों में जो हीट का अमाउंट है क्या वो सेम होगा? इसका आंसर है बेटा नो। वाई? इट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, की वाटर का अमाउंट कितना है। बकेट में अमाउंट क्या है वाटर का, ज़्यादा है, मग में अमाउंट क्या है वाटर का, कम है। तो जो हीट ज़्यादा हमें फील होगी वो किसकी फील होगी ज़्यादा, बकेट की, ना कि मग की। कहते ऑब्वियसली note as amount of heat in a bucket is of water is more than it contain more water, so two bodies being at the same temperature does not mean that they have same amount of heat, ठीक है। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर क्या है, सेम है, लेकिन उसका तो ये नहीं कि उनकी हीट की अमाउंट भी क्या होगी, सेम होगी। तो हीट एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, हीट एनर्जी डिपेंड ऑन द मास एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि वो चीज़ कितने अमाउंट में है, उसका कितना मास है, उसका कितना वेट है, उसका कितना वॉल्यूम है, और वो किस सब्सटेंस का बना हुआ है। सो टू बीकर्स कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर विल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अगर दो जो कंटेनर्स है सेम है, दोनों मग ही है या दोनों बकेट ही है, उसमें जो वाटर सेम टेम्परेचर वही हम सेम उसकी अमाउंट हीट की मानी जाएगी। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। फर्स्ट वन हीट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड हीट। और
डिग्री और मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको मापने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। हीट को हम कैलोरी या जूल्स में क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन टेम्परेचर को हम केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहीट में क्या है, मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हीट किस पे डिपेंड है, मास पे, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि कितना मास है, ठीक, ऑब्जेक्ट का कितना, उसका टेम्परेचर, उसका कैसा नेचर है। और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ हीट, की कितनी हीट उसको प्रोवाइड हो रही है, उस बेस पे उसका टेम्परेचर क्या हाई या क्या होगा, लो होगा, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज गुड टू नो, आपको यहाँ पे दिया है गुड टू नो में क्या कहे, देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। I again read this. Maximum and minimum thermometer is a special type of laboratory thermometer which is used to record the maximum minimum temperature the weather of a particular day, कि particular day में कितना high temperature है, कितना low temperature है, ठीक है, जो weather condition हमें बताता है कि today maximum temperature is this one, minimum temperature is this one, that is measured by the maximum minimum thermometer. Okay, now the next last topic is transfer of heat. Today last topic transfer of heat, कि हीट कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर करती है। तो हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। हाउ, ये आपको कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। फर्स्ट देखिए, व्हेन ए वेसल कंटेनिंग वाटर इज केप्ट ऑन ए स्टोव, ठीक है, ये गैस स्टोव पे रखा गया है, द बॉटम पार्ट ऑफ वेसल इन द कॉन्टेक्ट विद द फायर। तो जो आपका वेसल ये कोई भी कंटेनर लिया, उसका जो बेस है वो क्या हीट के कॉन्टेक्ट में है, वो फायर के कॉन्टेक्ट में है। आफ्टर सम टाइम टॉप लेयर ऑफ वाटर ऑल्सो गेट हीटेड अप, तो नीचे जो पानी गर्म हो रहा है, अब देखेंगे तो नीचे के साथ साथ ऊपर तक टॉप लेवल तक का भी वाटर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। हियर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉटम लेयर ऑफ वाटर टू टॉप लेयर। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर पहले सबसे नीचे गर्म होता है, धीरे धीरे वो ऊपर तक क्या हो गया, गर्म हो गया। इसका मीन्स क्या है कि हीट ट्रांसफर करिए वो लोअर लेवल से क्या अपर लेवल की ओर तरफ आ रही है, मतलब हीट की मूवमेंट हो रही है। सेकंड कहते हैं यू फील हॉट व्हेन यू टच द हैंडल ऑफ ए वेसल केप्ट ऑन स्टोव, ठीक है, स्टोव पे कोई बर्तन रखा हुआ है, अगर आप बाई चांस उस वैसे को टच करें, ठीक है, उसके हैंडल को टच करें तो वो भी आपको गर्म फील होता है। सिमिलरली वन एंड ऑफ ए मेटल रोड इज हीटेड, आपने हाथ में चिमटा पकड़ा हुआ है, उसको एक साइड से गर्म करें तो देखेंगे धीरे धीरे जिस साइड से आपने पकड़ा है वो भी क्या है, हॉट हो चुका है, ठीक है। इसका तो हीट क्या है, ट्रांसफर हो रही है, वो फर्स्ट पार्ट से कहाँ जाती है, नेक्स्ट पार्ट तक पहुंचती जा रही है, वो सारे पार्ट को क्या करें, मेटल रोड के सारे पार्ट को गर्म करती जा रही है। थर्ड पॉइंट, वी फील हॉट और वार्म ड्यू टू सन हीट विच इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे, ठीक है ना। अब देखो समर सीजन है तो जो सन की हीट है वो हमें महसूस होती है, हमें गर्मी महसूस होती है। तो देखिए हमसे सन कितने मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उसकी हमें हॉटनेस है, जो उसकी वार्मथ है वो हमें फील होती है। रिकॉल डेट इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडी डेट वाटर इवेपोरेट इफ यू केप्ट आउट इन द सन फॉर सम टाइम, कि अगर बाहर आपने किसी बर्तन में पानी रखकर वह सनलाइट में पड़ा है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, देखो, तो यानी सन की हीट से क्या है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो ऑल दिस एग्जाम्पल क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू another place or from one body to another body. So what is the difference in the way heat is transferred in above three situation? तीनों ऊपर जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, तीनों एग्जाम्पल में क्या है, आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, तीनों वे में आपका क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में भी कंटेनर से में था, वाटर नीचे वाला गर्म फिर ऊपर तक हो गया। सेकंड केस में क्या, हैंडल क्यों लिया था, उसका स्टार्टिंग पार्ट जो था वो हीट हुआ तो लास्ट पार्ट तक हो गया। थर्ड पार्ट में देखा सन की हीट हमारे तक पहुंच रही है, ठीक है, तो उसकी भी हमें गर्माहट में से, तो दीज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट वेज आर कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इस तरह से जब हीट की ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, कि कंटेनर में वाटर है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता जा रहा है, ठीक है, हैंडल है वो टच कर रहा है फायर को, उसका लास्ट पार्ट भी गर्म हो रहा है, सन की हीट हम तक पहुंच रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे है जिसके थ्रू क्या है, हीट का ट्रांसफर होता है, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन थ्री डिफरेंट मोड्स, नेमली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे कि हाउ हीट ट्रांसफर from one object to another object by three method, that is conduction, convection and radiation. आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो के थ्रू। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कॉल करके व्हाट्सअप कॉल पे या व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।